السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بن گئے، تعلقات وہیں سے جڑیں گے جہاں واجپئی سے ٹوٹے تھے، وزیر اعظم نواز شریف کو امید۔ میرے خلاف بینر کس نے لگائے، سوشل میڈیا پر مہم کس نے چلائی؟ جیو کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جواد ایس خواجہ کا ڈی جی آئی بی اور سیکرٹری داخلہ کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کی طرف سے غیر سرکاری ارکان کو دیے جانے والے نوٹس معطل کر دیے۔ چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ۔ عمران خان کا فیصل آباد میں جلسہ، دھاندلی کے الزامات کی تکرار، آخر عمران خان کا ہدف کیا ہے؟ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران۔ آج کی سب سے پہلی خبر جو ہے وہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا موضوع ہے شامی صاحب۔ نریندر مودی انہوں نے باقاعدہ طور پہ حلف اٹھا لیا بھارت کے پرائم منسٹر۔ تو نریندر مودی جو ہیں جی وہ بن گئے ہیں بھارت کے 15ویں وزیر اعظم، 15ویں وزیر، اور انہوں نے حلف اٹھایا ہے ہندی میں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب یہ جو بی جے پی ہے اس کی تو بہت شدت سے ایک جو شخصیت ہے اور امیج ہے وہ مقامی ہے۔ بالکل، لباس تو خیر وہاں کے پولیٹیشنز عموماً ہندوستانی لباس پہنتے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کے آج تک، اور لیڈرشپ جو ہے نا اس کے طور طریقے بالکل عوامی ہیں۔ آپ بیٹھیں گے، جلسہ ہوگا تو سٹیج ہوگی تو وہ ایک فرشی نشست ہوگی، اس پہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کا کھانے کا انداز، رہنے کا انداز، کافی اس میں لوگوں سے قربت ہے، جنہیں جنتا سے قربت کہتے ہیں۔ جو بیوروکریٹس ہیں ان کی اپنی دنیا ہے۔ تو نریندر مودی تو اب خالص دیسی آدمی ہیں اور ہندو مولوی ہیں ایک طرح سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو پریکٹسنگ مذہبی لوگ ہیں نا ان کی اپنی شان ہوتی ہے، یعنی پائس لوگ ہیں، تجرد کی زندگی آلموسٹ گزاری ہے۔ بالکل، یعنی بیوی سے شادی ہوئی ہے، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوا، اب تو ویسے بیوی نے خواہش ظاہر کیا کہ چلیے اب بھی اگر اکٹھے رہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب تو فرسٹ لیڈی ہوں گی نا۔ ہاں فرسٹ لیڈی ہوں گی، اب دیکھیے کیا بنتا ہے۔ لیکن ہندوؤں میں تو یہ جو تجرد کی زندگی ہے نا یہ زہد کی علامت ہے۔ ٹھیک، تو مودی تو ایک تنومند صحت مند شخص ہے، 56 انچ کی چھاتی، اور مطلب ایک گرج کے بات کرتے ہیں۔ منموہن سنگھ جو تھے وہ ذرا کمزور سی شخصیت تھی ان کی، پڑھے لکھے تھے، اکانومسٹ دنیا میں رہے، ورلڈ بینک میں رہے، ورلڈ فیم کے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس تو جو کچھ جمع جتھا ہے اسی وجہ سے آیا۔ لیکن مودی کا ایک اپنا معاملہ ہے، اور اصل میں مودی اب ایک نئی شان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ جی تو شام صاحب یہ جو وزیر اعظم ہے بھارت کا، یہ کوئی بہت امیر آدمی بن جاتا ہے؟ نہیں، امیر آدمی نہیں ہوتا، غریب لوگ ہوتے ہیں بہت۔ اچھا، آپ دیکھیے جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے ہاں وہ تو بہت امیر باپ کے بیٹے تھے، ان کے والد تو بیرسٹر تھے، لیکن جب سیاست میں آئے تو موتی لال نہرو جو ہیں انہوں نے گاندھی جی کو چٹھی لکھی، اور موتی لال نہرو سیاست میں اس لیے آئے تھے کہ ان کا بیٹا سیاست میں آ گیا۔ ٹھیک، اس بیٹے کی محبت ان کو سیاست میں لے آئی، وگرنہ وہ وکیل تھے۔ لیکن جب سیاست میں آئے اور گاندھی جی کے پیروکار بنے تو پھر ایک چٹھی میں ان کو لکھتے ہیں کہ اب تو ان کے گھر کے تو پورا ایک مغربی تہذیب میں گندا ہوا گھر تھا، اسی وقت یعنی جس طرح انگریزوں کے بڑے لارڈ رہتے ہیں اس طرح رہتے تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ تھی کھانے کا طریقہ، پکانے کا طریقہ۔ لیکن جب سیاست کے اندر آئے
تو پھر گاندھی جی کو لکھتے ہیں کہ بھئی اب تو جو چوکی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور جو ہاتھ سے دال اور چاول کھانے کا مزہ ہے وہ اور ٹھیک. تو وہ ساری باتیں بدل گئی. تو پنڈت جواہر لال نہرو جب سیاست میں آئے تو پھر کلچر بدل گیا, یہ لوگوں کے قریب رہے, ایک سادہ زندگی اور لوگوں کی قربت کی زندگی. یہ پھر ہندوستانی وزراء اعظم نے اس روایت کو جاری رکھا ہے. اب یہ منموہن سنگھ جو ہے نا, ان کی کوئی جائیداد کی میں دیکھ رہا تھا تفصیل, کوئی 10 کروڑ کے قریب مالیت ہے ان کی جائیداد کی. اچھا. لیکن ایک مکان ہے چندی گڑھ میں اور ایک ادھر فلیٹ ہے. اب وہ انہوں نے 24 لاکھ میں خریدے تھے. ٹھیک. اور پہلے وہ 5 کروڑ اس کو ڈکلیئر کیا تھا, ان کی قیمت کا وہ 10 کروڑ ہو گئی. یعنی اپریشیٹ کریں, اپریشیٹ کریں. تو ان کی تو گویا 24 لاکھ کی تھی نا انویسٹمنٹ. بالکل. اور 2 کروڑ کے قریب ان کی رقم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں ڈپازٹ انہوں نے رکھا ہوا. اس کی آمدن ہوگی, اس سے گزارا چلاتے ہیں. کیوں انہیں بطور وزیر اعظم تنخواہ نہیں ملتی تھی؟ تنخواہ ملتی ہے. تنخواہ انڈین پرائم منسٹر کی تنخواہ ہے کوئی 1,60,000 روپے کے قریب ماہانہ. اور بہرحال اب تو دیکھیے ایک زمانے میں یہ انڈین پرائم منسٹر ایک عام گھروں میں رہتے تھے جیسے گھر تھے. اب پنڈت جواہر لال نہرو کا جب انتقال ہوا تو ان کا جو گھر تھا وہ نہرو میوزیم بن گیا. ٹھیک. پھر لال بہادر شاستری جو ہیں وہ جس گھر میں رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا. عہدے کے وزیر اعظم کے طور پر ہی اعلان تاشقند کے وقت تاشقند میں تھے, تو ان کے گھر کا ایک حصہ جو ہے اس کو میوزیم بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہماری اندرا گاندھی ہیں, جب ان کا انتقال ہوا تو بھی وزیر اعظم ہاؤس میں رہتی تھی. ٹھیک. تو وزیر اعظم وہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہ اندرا گاندھی میموریل بنا دیا گیا. ٹھیک. یہ میوزیم بنا دیا گیا. تو گویا 2.5 گھر تو اس طریقے سے وقف ہو گئے. ٹھیک. تو اس کے بعد میرے خیال انہوں نے بنایا, جب راجیو گاندھی پہلے وزیر اعظم تھے جو اس گھر میں رہے, انہوں نے یہ ریس کورس روڈ پر ایک خاص پھر گھر بنایا ہے جو 15-16 ایکڑ کا گھر ہے, اور اس میں 5 کوٹھیاں کہتے ہیں. وہ سیکریٹریٹ بھی ہے, سیکورٹی کے عملے بھی کے لیے بھی اکاموڈیشن ہے, اور پھر اس میں آپ گیسٹ ہاؤس بھی ہے جو وزیر اعظم کا, اور وہ میٹنگز بھی, لوگوں سے میل ملاقات بھی وہیں ہوتی زیادہ تر. تو اب تو ایک پورا کمپلیکس ہے. ٹھیک. اب اس میں جو انتقال ہوا راجیو گاندھی کا تو وہ یادگار نہیں بنائی گئی کیونکہ اس پر ہی مشکل ہو جاتی ہے. اگلا وزیر اعظم آ گیا. ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب بریک پر جانے سے پہلے بتا رہے تھے انڈین پرائم منسٹر ہاؤس کے بارے میں. شامی صاحب, ہم اگر اپنے پرائم منسٹر ہاؤسز کو کمپیئر کریں تو کیا پوزیشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارا بھی ایکڑوں پر ہے. جی. اب یہ تو میں کہہ سکتا کتنا, لیکن 16-17 ایکڑ سے کم کیا ہوگا, تو بہت ہیوج ایریا ہے یہ بھی. اور اس میں بھی کافی عمارتیں ہیں. جی. اور اب تو وزیر اعظم کا دفتر بھی پریکٹیکلی وہی بن گیا ہے گھر جو ہے, لیکن اس طرح سے میرا خیال ہے اس طرح سے آرگنائزڈ نہیں ہے. پاکستان میں تو یہ ہوا نا کہ عرصہ دراز تک تو صدارتی نظام آ گیا نا بیچ میں. جی. تو ایوان صدر بنایا گیا اسلام آباد کا, اس سے پہلے کی کہانی اٹھا رکھتے ہیں. تو مرکزی عمارت جو تھی وہ ایوان صدر کی معلوم ہوتی تھی. یہ ایوان وزیر اعظم تو پھر بعد میں ڈیزائن ہوا نا, اور پھر میرا خیال نواز شریف صاحب کے دور میں مکمل ہوا چاہے. اچھا. تو اب آپ دیکھیے عمارت جو ہے ایوان صدر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے, جو اسمبلی ہے اس کی عمارت بھی دبی دبی سے لگتی ہے, کیونکہ اسمبلی کی جو اوریجنل بلڈنگ تھی وہ تو ڈھاکہ میں تھی نا. ٹھیک. یعنی اسمبلی کی جو سیٹ تھی, یعنی اسمبلی جہاں بیٹھتی تھی وہ تو ڈھاکہ تھا. یعنی اگر ہم متحد ہوتے تو ہمارے اجلاس وہاں. ہاں, ڈھاکہ میں. ٹھیک. تو ڈھاکہ میں پارلیمنٹ ہاؤس بنایا گیا جسے ایوب نگر جس کا نام تھا, اب بدل کے شیر بنگلہ نگر کر دیا انہوں نے. اچھا. تو وہ بہت بڑا اور ہیوج کمپلیکس ہے, دیکھنے قابل ہے. تو اب صدر یہاں بیٹھتا, یعنی ایگزیکٹو کا مرکز یہاں ہوتا اور لیجسلیشن کا مقصد وہ مرکز ڈھاکہ ہوتا. اب جب پارلیمنٹری سسٹم آیا تو پھر یہ وزیر اعظم ہاؤس کی ضرورت محسوس ہوئی اور بنایا گیا. اس سے پہلے کراچی میں جب تھا دارالحکومت تو 1947 سے لے کے 58 تک وزیر اعظم ہاؤس وہاں رہا,
अब अगर उसकी कहानी बयान करने बैठे जी तो आज दिल्ली हाथ से निकल जाएगा। तो हम वजीर आजम पे आ जाते हैं ना, हमारे वजीर आजम भी आज दिल्ली में। तो हमारे वजीर आजम दिल्ली गए, पहले तो ये बात है कि जनाब हमने तो गुजारिश की थी कि उन्हें जरूर जाना चाहिए जी। लोग बहुत से तज्जिए करते रहे, तबसरे करते रहे, बातें करते रहे, चुटियां काटते रहे, गुदगुदी करते रहे, लेकिन बहरहाल वजीर आजम को यही फैसला करना चाहिए था और वही फैसला उन्होंने किया। अगर वो ना जाते तो उसमें बहुत सी कबाहतें पैदा होती और एक आगाज ही में बदमज़गी पैदा हो जाती। और नरेंद्र मोदी साहब की जहानत की दाद देनी चाहिए या उनकी पार्टी कि उन्होंने सार्क ममालिक के लोग जो थे उनको मदऊ किया और सारे ही ममालिक जो हैं उनके सरबराह मुमलकत या हुकूमत वहां पहुंचे। बिल्कुल। बांग्लादेश की वजीर आजम जो हसीना वो जापान के दौरे पर थी, इसलिए वहां की स्पीकर आई जी। वगरना तो आप देखिए अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक सदर दोनों के पहुंचे, फिर नेपाल के वजीर आजम थे, भूटान के वजीर आजम थे, मालदीव के सदर थे। तो सारे सार्क जो के लोग और सार्क कम्युनिटी कह लें आप, जो एक मुस्तकबिल में ये सार्क जो है इसी तरह डेवलप होगी इंशाल्लाह जैसे यूरोपीय यूनियन हुई है। शाम साहब एक बात कही जा रही है कि हमारे वजीर आजम जब वहां गए, नंबर 1 उनका इस्तकबाल एक पुरतपाक नहीं हुआ, रूटीन का एक इस्तकबाल था। नहीं वो तो असल में आप देखिए अब एक हुकूमत जा चुकी है, दूसरी ने टेक ओवर नहीं किया। ठीक। तो एक हुकूमत जो है तो ऐसी ढीली हो गई भी हम तो फारिग हैं, और दूसरी हुकूमत ने तो अभी ये ऐसा ही होना था। एक रूटीन का इस्तकबाल सरकारी अफसरों ने वसूल कर लिया और सब लोगों को ऐसे नसीब किया गया। अब वहां तो अब ये भी बातें की गई, बात मैं देख रहा था, वो कहते थे असल में तो नवाज शरीफ साहब को मदऊ करना था, बाकी तो फिर सार्क ममालिक का बहाना बनाया गया। अब जो कह लें आप, लेकिन एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मोदी साहब ने लिया है और बड़ा अच्छा जवाब नवाज शरीफ साहब ने दिया है। अब देखिए अब लोग तो कायम करें क्या ब्रेक थ्रू होगा और क्या, ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा। ये ब्रेक थ्रू यही होगा कि मुलाकात होगी, गर्मजोशी होगी। देखिए बीजेपी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक बरसों का रिश्ता है। ठीक। और वाजपेयी साहब से और नवाज शरीफ साहब से एक बड़ी गहरी वाबस्तगी हो गई थी। बिल्कुल। और वहां जो आए थे अब वहीं से सफर शुरू होगा। ठीक। तो दोनों लीडरों के दरमियान और दोनों जमातों के दरमियान एक हल्का सा एतमाद या हल्का सा एक ताल्लुक आप कह लीजिए वो मौजूद है, वो पहले से मौजूद है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के कई मसाइल तो बहुत पेचीदा है और वो अब कई मसाइल तो ऐसे हैं ना, कालाबाग डैम हमारा एक दाखिली मसला है, डैम बनाना जी, हम उसे नहीं हल कर पा रहे, तो खारजी महाज से क्या समझेंगे कि हम पेशरफ्त कर लेंगे एक दिन के अंदर। ठीक। लेकिन ताल्लुकात को बेहतर बनाना, एक दूसरे को समझना, आगे बढ़ना। अब ये तवक्को रखें नवाज शरीफ साहब से कि जो 64 साल क्या 67 साल में जो काम नहीं हुआ जी, वो जनाब एक मीटिंग में तय कर लेंगे। ठीक। इससे ज्यादा तो कोई दानिशमंदी से मुबर्रा बात हो नहीं सकती। शाह साहब वैसे एक बड़ी कैंपेन चल रही है, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि हमारे वजीर आजम को अपने कौमी लिबास पहन के जाना चाहिए था। देखिए वजीर आजम को कौमी लिबास में पहनना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उन्होंने वहां ये पहना हुआ, तो कौमी लिबास अगर पहनेंगे तो कौमी लिबास तो उनका भी वही है, हमारा भी वही है, ठीक है ना। तो दोनों में गुम न हो जाए, तो थोड़ी सी एक शख्सियत जो है जरा एक मुनफरिद रहे। हो सकता है इसलिए उन्होंने कोट पतलून पहन लिया हो। कि मोदी साहब ने वो पहनी हुई है वास्कट, और मनमोहन सिंह के पास बैठे हुए थे, उन्होंने पहनी हुई थी शेरवानी। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं वहां मरकज निगाह हैं। अब उनकी सदर जो है वहां के राष्ट्रपति, उनसे भी मुलाकात होगी, उस खाना भी खाएंगे मोदी साहब का, सार्क के लीडर से भी मुलाकात होगी, मोदी साहब से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। तो हमें देखिए एक गलतियां तो बहुत हुई हैं उनसे भी और हमसे भी। वो हमारे उस्ताद दामन है ना, उनका बड़ा मशहूर शेर है कि जब पार्टीशन हो गई और फसादात हुए तो दिल्ली में एक मुशायरा हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उसकी सदारत कर रहे थे जी। तो उन्होंने अपना जो गजल पेश की उस्ताद दामन ने, पंजाबी गजल थी, उसका एक शेर था, लाली अखा दी एह दसदी है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी। वाह, ठीक है ना। तो पंडित नेहरू ने उठ के उनको गले लगा दिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए इस तरह से।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, मरियम नवाज ने एक ट्विटर पे एक कमेंट लिखा है कि मैंने अपने वालिद साहब की टाइयाँ सिलेक्ट की थी जो वो पहन के गए हैं वहाँ पे। टाई तो एक ही पहनी होगी ना जी, तो वो बदलते रहेंगे बदलते रहे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। मरियम नवाज बड़ी अच्छी बच्ची हैं, खुश ज़ौक़ हैं, बात करने का सलीका आता है। और लेकिन एक मैं अर्ज करूं, जो कौमों की ताकत है ना, वो टाइयों में और कोटों में नहीं होती। भारत के बहुत कम वजीर आजम ऐसे हैं जिन्होंने कोई ढंग की टाई पहनी हो। ठीक। और आप देखिए कि क्या लिबास उनका रहा। एक ताकत जो है वो एक कौम के अंदर होती है, सिस्टम के अंदर होती है, वो हमें पैदा करनी चाहिए। ऐसे वज़ीर आज़म भी तो कम होंगे जो गैर मुल्की दौरों में अपने बेटों को साथ ले जाए। नहीं, बेटे तो अब बड़े ले जाते हैं। हमारे आसिफ जरदारी साहब जाते थे जी, उनके साथ भी उनकी फैमिली होती थी जी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनके भी साथ जाते थे। यहाँ तो हुसैन नवाज गए हैं बेचारे, गुगलू से हैं, गुपलू से जी। और तो उनका भी दिल किया होगा कि भाई अब्बा वजीर आजम बने हैं तो कुछ हमें भी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। चलिए, कोई रायती नंबर दे दिए जाए, कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल जी, अगर ये जो हमारा असल में जो तनकीद का मैयार है ना, वो जितना ऊंचा हो गया है, वो एहतियात कर ली जाए तो बेहतर है। ठीक। चलिए शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो है जियो केस की समाअत आज हुई सुप्रीम कोर्ट में। और असल केस पे तो समाअत नहीं हुई, लेकिन जस्टिस जवाद ख्वाजा के खिलाफ जो बैनर्स लगे थे उनके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया। भाई, जवाद ख्वाजा साहब जो उनके खिलाफ बैनर्स लगे जी, पता नहीं कौन लोग हैं लगाने वाले। अब उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर आईबी जो है जी, डीजीआईबी उनको बुलाया है कि भाई सुराग लगाओ इनका। हाँ। और ढूंढो। अब डीजीआईबी जो है, देखिए कहां से उनको ढूंढते हैं, या कोई इधर उधर से पकड़ के पेश कर देते हैं। बहरहाल जवाद ख्वाजा साहब की बड़ी इज्जत है और बड़ी साख है और बड़ी हमारे दिल में तो बड़ी मोहब्बत भी है उनकी, लेकिन इस मुकदमे में उलझ गए हैं वो। हाँ, ये मुकदमा जो है जब उन पे एतराज हुआ तो ना ही सुनते तो बेहतर होता, दिल मेरा चाहता है जी। बहरहाल अब देखें क्या फैसला होता है, क्या करते हैं। और शाम साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ पैमरा के हवाले से कि पैमरा के जो 3 अरकान को नोटिस जारी हुए थे वो भी मुअत्तल नहीं। पैमरा तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी, अब उसने तो पैमरा के जो 3 क्या गैर सरकारी अरकान थे उनको मुअत्तल किया था। पैमरा नहीं, ये गवर्नमेंट ने पता नहीं किसी, और उन्होंने वो मुअत्तली वापस, शोकात नोटिस जो थे वापस करके मुअत्तल कर दिए उनको। अब वो बदस्तूर दंदनाते रहेंगे। और जो इजलास पैमरा का कल होने वाला था, हाँ, उसको भी खत्म कर दिया, वो भी खत्म हो गया। क्योंकि जो कमालुद्दीन टीपू साहब एक मुकर्रर किए गए थे जी, एग्जेक्टिव मेंबर, बिल्कुल, उन्होंने कहा जनाब ये तो ग्रेड 20 के थे और 21 की असामी पे बराजमान हो गए, तो उन्होंने उनका नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया कि नहीं, वो भी मौजूद नहीं रहे। ठीक। तो ये पैमरा में ये तमाशा लग रहा है, हुकूमत ने संजीदगी से इस अदारे को उस्तवार करने की कोशिश नहीं की। कभी कोई मेंबर आ जाता है, फिर कभी कोई एग्जेक्टिव डायरेक्टर आ जाता है, कभी चेयरमैन गैर संजीदगी से मुकर्रर होता है। जितना बड़ा ये अदारा था और जो इसकी जिम्मेदारियां थीं और उसके साथ जो सलूक हुआ है, वो आप इस पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा जा सकता है। बहरहाल अब तो देखिए, आज तो रोजनामा जंग में और जियो पर भी आ गई माफी, जो है माजरत तो कर ली ना जियो ने, कि जो DGISI का जिस तरीके से तस्करा हुआ था उस पर उन्होंने माजरत कर ली है। और हमारा CPNE का इजलास था कोयटा में, तो वहां भी बहरहाल एक जियो और जंग की जो शिकायतें थी उन पर गौर किया गया और कहा गया कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रहे हैं इनके खिलाफ। लेकिन एक बात उसमें भी कही गई कि DGISI जो है उनके साथ जो सलूक हुआ वो मुनासिब नहीं था, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अदारे हैं इनको एडिटोरियल कंट्रोल सख्त करना चाहिए और ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करनी चाहिए। देखिए, जो कौमी सलामती के अदारे हैं ना, उनको इस तरीके से ज़ेर बहस नहीं लाया जाता जिस तरह हम ज़ेर बहस लाने लग पड़े अपने प्रोग्रामों में। और हमारे जो एंकर्स हजरात हैं और तज्जियाकार हैं वो अपनी हर हद जो है उससे गुजर गए हैं कई लोग। ठीक। तो उनको वापस आना पड़ेगा, इस जिन को बोतल में डालना पड़ेगा
तभी काम चलेगा। तो शम्स साहब, आप समझे कि मामला खत्म होने की तरफ जा रहा है आज के माफी नामे की इशाअत के बाद? भाई एक तरफ से तो खत्म करने की कोशिश की गई है, ठीक। अब दूसरी तरफ से क्या उसका रद्द अमल है इस बारे में अभी कोई इत्तला नहीं हुई जी। वैसे वो कहते हैं ना कि 50%, उन्हें कहा मेरी शादी जो है हो रही है, उनका रिश्ता तय हो गया, उनका 50% तय हो गया। कैसे? उनका मैं रजामंद हूं, वो लड़की वाले नहीं मान रहे तो या समझिए कि लड़की वाले रजामंद हैं और लड़के वाले नहीं मान रहे। ठीक है। तो क्योंकि यार उनको ये भी तो बड़ा सूए अदब ना हो जाए कहीं तो लड़के वाले भी अगर कुछ तवज्जो करें तो मामला जो है निबट जाए। वैसे तो अब एक इत्तेफाक हुआ है पीबीए के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कि कंप्लेंट कमीशन बना दिया जाए, ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जी, ताकि वो जो पैमरा जो है उसकी बजाय वो कमीशन जो है तादीबी कार्रवाई कर सके, मुस्तकिल नौइयत का हो, मुस्तकिल नौइयत का हो। चीफ जस्टिस जज जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का है वो उसका सरबराह हो, उसमें पीबीए के नुमाइंदे भी शामिल हो, सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हों, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैदा होने वाली शिकायत है उन पर तेज रफ्तारी से फैसला कर सके और गौर कर सके। अब देखते हैं ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से कोशिश तो हो रही है, अल्लाह करे को ऐसा अदारा बन जाए। बुनियादी बात यह है कि हम अपने अंदर खुद एक सेंसर नाफिज करें। बिल्कुल, जब तक हम खुद ये काम नहीं करेंगे जी, और उस वक्त तक बैरूनी हाथ जो है ना हमें इस बात पे मजबूर नहीं कर सकेगा, इसके पर उलझने पैदा होती रहेंगी। शाम साहब, जरा इमरान खान के जलसे पे गुफ्तगू कर ले। कल बड़ा अच्छा जलसा कहा जा रहा है, उनका तो दावा है कि बहुत बड़ा जलसा, अनप्रेसिडेंटेड फैसलाबाद वाला जलसा तो हो गया। जलसा तो इमरान खान साहब जो हैं उनका तो एक वहां से एमपीए भी मुंतखब हुआ था जी जी बिल्कुल। और देखिए इस वक्त पंजाब में जो मुकाबला हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान है, और वहां तो उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब अगला जलसा जो है वो सियालकोट में। बिल्कुल, तो मैं देख रहा था वो उमर डार साहब जी, जिनके भाई उस्मान डार वहां ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में खड़े हुए थे, और जो 4 हल्के जिनकी गिनती का मुतालबा, गिनती क्या, जिनके अंगूठे का मुतालबा किया जा रहा है स्कैनिंग का, उनमें से एक हल्का वो भी शामिल है। तो अब वो कहते हैं सुनामी सियालकोट पहुंचेगा। तो बहरहाल ये जलसे जो है एक अच्छी बात है, एक हुकूमत के ऊपर दबाव होना चाहिए और जलसे बुरी बात नहीं है। लेकिन शमी साहब, हदफ क्या है इन जलसों का? क्या सिर्फ दबाव डालना, इलेक्शन रिफॉर्म्स, लहू गर्म रखने का एक बहाना है? इस लिहाज से तो इस पर कोई एतराज नहीं हो सकता। अगर इससे कोई मामला आगे बढ़ जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की खराबी हो या सिस्टम जो है उसको तहबाला होने का खदशा हो, फिर मामला दूसरा होगा। लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कि आप इतना परेशान ना हो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। ये हिस्सा है आपके सवालात का। शामी साहब, हमने बात करनी थी एमक्यूएम के जलसे के हवाले से, लेकिन इसी जलसे के हवाले से क्वेश्चन और बड़ा दिलचस्प है। वो क्वेश्चन सवाल कहा करें, क्वेश्चन क्या होता है? ठीक है, सवाल ये है कि ये कराची एट्स सिंध के नाम से ये सवाल आया उनका, जनाब शामी साहब, इतना बड़ा जलसा हमारा जी, कराची एट्स सिंधी जी, नाम नहीं है कोई? नहीं, नाम नहीं। तो नाम भी नहीं लिखते, अगर पर्दा नशीन तो क्या बात करें। तो इन्होंने अखबारात में जी जो बगैर नाम के मरासले हैं वो नहीं छापा करते। अच्छा, तो बारा पढ़ दे। तो सवाल बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी कि इतनी ठाठे मारता एक समंदर था, एमक्यूएम की रैली की तरफ इशारा है, लेकिन इसको किसी ने भी कवर नहीं किया, क्योंकि अफसोस ये है कि आप लोग नफरत की आग में जल रहे हैं। पूरी दुनिया में कवर हुआ है, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा है, प्रिंट में आया है, और अच्छी बात है। देखिए, जो एमक्यूएम की जो सलाहियत है हजूम इकट्ठा करने की, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वहां तो जनाब तकरीरें की हैं, हमारे फारूक सत्तार साहब ने तो अंग्रेजी में भी तकरीर की है और बरतानिया को धमकाया है जी। अब मुसीबत तारी ये है कि इसमें तो जलसा बहुत बड़ा था, हमें एमक्यूएम के बहुत से जो नुकात हैं उनसे इत्तफाक भी है, लेकिन मुश्किल सूरत हाल ये है कि जो मसला वहां का है लंदन का, हल कराची में हो रहा है, गुस्सा हमारे ऊपर आ रहा है। ठीक, वो पंजाबी का मुहावरा, डिग्गी खोदते तो गुस्सा को मारते, यानी खोदते से गिर पड़ी, बिल्कुल, गधे से, और गुस्सा कुमार से, बिल्कुल। तो भाई हमारा तो कोई कसूर नहीं है कि वहां जो सूरत है हुई जी। तो बहरहाल अब वहां जाके अगर कोई जौहर दिखाएं
वहां भी रैलीज वगैरह निकाले तो अच्छी बात होगी। यहाँ के जौहर नहीं वो मानेंगे? नहीं, यहाँ के जौहर अब क्या मानेंगे, इतनी दूर जाते जाते तो वैसे ही तस्वीर जो है पता नहीं वो उसी तरह जाती है कि नहीं जाती। बहरहाल जी, कई मामलात में हमें उनसे हमदर्दी है, हमारे भाई हैं और बड़े जलसे उन्होंने इकट्ठा किया, मगर ये धमकियां दे रहे हैं हम यहाँ जहाँ वो नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे और हम ये ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई इनको क्या फर्क पड़ेगा लंदन को? यानी आप, अजीब बात है, मैं आपको धमकी दे रहा हूं कि अगर आपने मेरा ये काम ना किया तो मैं अपनी टांग तोड़ लूंगा। अजीब बात है। क्या किस तरह की सियासत हो रही है, जरा करके दिखाएं ना इस तरह की सियासत लंदन में जाके। शाम साहब, ये इलियास साहब ने दुबई से बड़ा दिलचस्प सवाल किया। वो जो अभी आप बता रहे थे कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म सादा इसलिए हैं कि गांधी और नेहरू दोनों ईस्टर्न ड्रेस पहना करते थे, जबकि कायदे आज़म जो थे वो वेस्टर्न ड्रेस पहना करते थे। हमारे यहाँ इसलिए वेस्टर्न ड्रेस का कल्चर। मैं तर्ज करूं जी, पहली बात तो यह कि गांधी जी जो थे वो तो ईस्टर्न ड्रेस भी नहीं पहन सकते जी, वो तो लंगोटी थे और चादर होती थी ऊपर जी। उन्होंने तो लिबास की तौकीर खत्म कर दी थी गुर्बत, यानी देखिए ना, झोंपड़ी में रहे, बकरी पाली, उसका दूध पिया और लिबास जो है एक चादर लपेट ली। ठीक, एक बात। दूसरी बात आप गौर कीजिए कि कायदे आज़म जो है वो अंग्रेजी लिबास पहनते थे, दुरुस्त बात है, लेकिन जब कायदे आज़म गवर्नर जनरल बन गए तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने अंग्रेजी लिबास पहना। ठीक, जितने ऑफिशियल फंक्शंस हुए हैं सब में कायदे आज़म जो है वो शेरवानी में मलबूस और टोपी में मलबूस नजर आए। तो ये भी हमें समझना चाहिए, कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल बनकर अंग्रेजी लिबास को ऑलमोस्ट तर्क कर दिया था। बहरहाल ये जरूरी नहीं है, अंग्रेजी लिबास भी पहना जा सकता है, लेकिन और अंग्रेजी लिबास में भी सादगी इख्तियार की जा सकती है। लेकिन बहरहाल एक लोगों के साथ जो ताल्लुक है ना, और बड़ी अजीब बात है कि शलवार और कमीज को जो यहां आम किया है और एक उसको एक रिफत दी है, वो भुट्टो साहब ने दी है। एक ही रंग का जोड़ा जो है शलवार और कमीज पहनी जाए, ये भुट्टो साहब ने इसको आम किया। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मोहम्मद आजम साहब है लाहौर से फोन लाइन पे जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आजम साहब। वालेकुम सलाम शामी साहब। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा सवाल है शामी साहब से। हाँ जी, हुक्म करें। जी शामी साहब, 55 करोड़ लोगों ने वोट डाला है इंडिया में। अच्छा जी। कहीं से धांधली की आवाज नहीं आई, सिंगल आवाज नहीं आई धांधली की। ठीक है, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? हमें तो यहाँ, हम तो यहाँ मुकाबला नहीं इंसाफ दे सकते। अपने आप को दुरुस्त करके मुकाबला करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? दुरुस्त करें ना अपने आप को, यानी ये सिर्फ ये हमने दुरुस्त नहीं करना अपने आप को। ठीक साहब, ये जी सामिया रईस साहिबा हैं, सामिया रईस साहब हैं और हैं फैसलाबाद से। ये कह रही हैं कि शामी साहब, जितना तमकनत और वकार इंडिया की इनॉग्रेशन की तकरीब में नजर आ रहा था, कि इतना क्या हमारे पाकिस्तान में कभी नजर आएगा? पाकिस्तान में भी नजर आता है, बड़ी पुरवकार तकरीबात होती हैं जी। तकरीबात में हम कोई पीछे नहीं है जी। और ये तो कल्चर तो एक ही है ना। बिल्कुल, वो जो अंग्रेज का कल्चर है ना जी, उसी तरीके का मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, उसी तरह का प्राइवेट। वैसे बाय द वे, वजीर आजम हिंदुस्तान जो है इसका कोई मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ सदर जो है राष्ट्रपति, उनका सदर उनका होता है मिलिट्री सेक्रेटरी। और पाकिस्तान में भी वज़ीर आजम जो थे ना 58 तक, उनका कोई मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं होता। ये सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट के साथ। ये फिर भुट्टो साहब ने आकर हेड ऑफ द स्टेट का करोफर जो है वो अपने साथ भी वाबस्ता कर लिया। ठीक शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सज्जाद साहब, आपसे माजरत कि आप फोन लाइन पे थे, आपकी अब कल कॉल लेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।